Sir, I want to say something. Go ahead. Sir, I am really very sorry. Sir, yesterday I was making sentence, so I used destination instead of uh, destination instead of Destiny, sir. destiny. Ha, destiny. I couldn't realize that time, but when I watched the video na last night, so that time I could realize कि I was mistaken, and you have point out, but sir, I swear I really couldn't realize that time. But I am feeling विद्या कसम guilty. खाओ. So I am so sorry, sir. विद्या कसम. विद्या कसम. विद्या बालन की कसम विद्या कसम मुझे नहीं समझ में आया था. I am so sorry for that, sir. Okay. आज अच्छा, whatever is written on the blackboard, have you got it? Yes, You sir. can Yes, zoom sir. it. Yes, sir. Yeah, yeah. Yes, sir. Yes, sir. We have got. Okay. चलो आज एक अभी राइटिंग वर्क से थोड़ा सा दूर रहते हैं थोड़ी देर के लिए और बैठ के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं अपन. So I'm changing the scenario. आंसरिंग राउंड खेलते हैं दोस्तों. पहला क्वेश्चन हम सारिका से. अरे सारिका, एक चीज और अभी हम सारिका तब तक left. तुम. हाँ. Sarika left You the are mute. meeting. Aparna does Modi ji deliver speech? Deliver nice speech. Yes, of course, sir. He delivers nice speech. क्या मोदी जी अच्छी स्पीच देते? हाँ सर, बिल्कुल. वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं. जिसका सीसी ऑन ना हो प्लीज कर लेना. अब एक वचन कुछ ले लो. अपर्णा, रेनू से पूछो. ओके. रेणु भाभी, does Shubham comprehend all the chapters which he gets? Does Shubham comprehend all the chapters? Yes. He comprehend all the chapters. Come again, Bhabhi. He comprehends all the chapter. All the Chapters. I made mistake. I did not use pronoun instead of name. complete the process. Aparna. क्या शुभम सभी चैप्टर को कॉम्प्रिहेंड करता है, आत्मसात करता है? हाँ, शुभम सभी हाँ वह सभी चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंड करता है, आत्मसात करता है. Okay. So I have to ask whom? Poonam? Ritu. Yeah, Ritu. Ask Ritu. him. Okay. Yeah, Ritu. Does your cook need the dough for samosas? Yes, she did need the dough. Sorry, Ritu. She. Renu, come again, please. Okay. Again, Does your cook need the dough for samosas? Yeah, she need the dough for samosas. Repeat your Sorry. English sentence, Ritu. She needed the dough for samosa. S.
20D रेनू। अब बिहाफ ऑफ रेनू हम तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। Okay, sir. Does Aparna come to you every year? Yes में आंसर। Yes, she comes to me. Uh, comes to me every year. क्या अपर्णा आपके घर घर हर साल आती है? हाँ, वह मेरे घर हर साल आती है। पूनम पूनम, does she completed their all writing work? Sorry, does she complete her all writing work? मत लगाओ एक्सटेंशन। Does she complete their all writing work? Your possessive adjective is wrong। क्यों लगा रहे? सॉरी हाँ Does she complete their all writing work? There जो possessive adjective है, रेनू बताओ किस तरह के सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं? सर वो बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। नाउ बहुवचन। सिंगुलर है एक। हाँ, शी के लिए। सर शुड आई टेल? नहीं नहीं नहीं, Does she हमें complete? केवल उसको ये बताना है कि क्या गलत है, सही उसको करना है। Does she complete her writing work? पूनम No, Aparna, she does not complete her writing work. एक मिनट रुकिए पूनम। रेनू आप स्टॉप कर दीजिए। Yes, she completes her writing work. कंप्लीट द प्रेस। Sorry. क्या उसने अपना सॉरी सॉरी रितु, क्या उसने अपना सॉरी रितु, सॉरी क्या वह अपना लेखन कार्य पूरा करती है? स्पीकर कम अगेन विद कॉन्फिडेंस। क्या वह अपना लेखन कार्य पूरा करती है? हाँ, वह अपना लेखन कार्य पूरा करती है। रेनू आस्क एनी क्वेश्चन टू पूनम। Okay. Poonam, does what is her name? Does she? Okay. So does your guest cooks नहीं, anything? एक नाम लीजिए। Okay. एक नाम रखिए। Her name is just tell me what is her name? Deepika, हेमा मालिनी रखिए। हम Deepika. हेमा हाँ, मालिनी okay. Does Deepika cook something for you? Yes, she cooks something for me. क्या दीपिका ने आपके लिए कुछ बनाया? सॉरी भाभी बनाती है। नहीं। एक Does सेकंड रुकिएगा सभी लोग। रितु अगर तुम्हें याद है तुमने कितनी बार सॉरी बोला है अभी तक किसी के लिए भी, मतलब एक मोटा अंदर। सर आज की डेट का कि जब से क्लास चालू हुई तब से? चलो आज की डेट में कितनी बार बोला है? एक या दो बार। और कल? इतना याद नहीं है मुझे। अभी सभी लोग म्यूट करके हमारी बात को सुनिएगा। अजीब तो लगेगी लेकिन सुनिएगा। हमारे यहाँ एक किंवदंती है। डू यू अंडरस्टैंड किंवदंती? कहावत कहावत जैसे किंवदंती है गांव में कि इमली के पेड़ पे चुड़ैलन रहती है। इमली के पेड़ पे मान्यता चुड़ैलन मान्यता सर मान्यता वाह, मान्यता थोड़ा सा भिन्न शब्द हो जाएगा। धारणा
है, धारणा है, धारणा। हमारे एक धारणा है। धारणा शब्द ले सकते हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पे हिंदी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर किंवदंती शब्द बना हुआ है, आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। हमें तो लगता है 8वीं 9वीं की क्लास में मौजूद रहता है। सर ये हितोपदेश सुना की है। बुक्स में रहता था, हितोपदेश और पंचतंत्र की। किंवदंती, राइट। तो हमने जो उदाहरण दिया, आप उसका पर्यायवाची न खोजें, हमने एग्जाम्पल दे दिया, तो अभी क्लियर हो गया ना कि ऐसी किंवदंती है कि इमली के पेड़ पे चुड़ैल रहती। तो हमारे यहाँ एक किंवदंती है ऋतु। सभी लोग सुन रहे हैं, ऋतु को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम बोल सभी से रहे कि इस क्लास में जो सॉरी बोलता है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। अब उसको हम टेक्निकली अगर देखें तो जो सॉरी बोल रहा है इमीडिएटली बोल रहा है, एट द पॉइंट बोल रहा है, जाहिर सी बात है वो पूरी तरह फोकस्ड है उस समय। जैसे रेनू ने जैसे ही क्या उसने शब्द बोला, या क्या नाम लिया था पूनम की मेट का? मेड नहीं सर, उसकी बेटी दीपिका, भतीजी। बिटिया का नाम लिया था, भतीजी। क्या नाम? दीपिका। दीपिका। जैसे ही रेनू ने बोला क्या दीपिका ने, तो हमारी क्लास में ऐसे जम के सॉरी गूंजती थी कि आदमी कांप जाता है, क्योंकि बच्चे वो ज्यादा रहते हैं और वो बहुत अटेंटिव रहते हैं। तो अब यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप अनम्यूट करते हैं तब तक कुछ सेकंड व्यतीत हो जाते हैं, और अभी भी हम लोग, अधिकतर लोग, मोबाइल या लैपटॉप की अपनी सेटिंग हैंडी नहीं है लोगों की, एकदम से खट से अनम्यूट करके बोले सॉरी। और अगर आप सॉरी तुरंत नहीं भी बोल सकते, तो हम जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, ये व्हाट्सएप से लिया है हमने। कोई चीज अगर सही नहीं है तो वो ये हो गया, और कोई चीज सही है तो अच्छी है तो अपन ऐसा करते हैं, ये सही ये गलत, है ना? तो साइन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही रेनू ने बोला क्या दीपिका ने, और ने लगा, फट से व्यक्ति सॉरी बोलेगी, क्योंकि हम पास्ट सिंपल नहीं खेल रहे हैं। और अगर याद करना है, किसी को याद करना है, तो वो ऐसे याद कर ले कि पास्ट सिंपल में नहीं लगता है, वो ऐसे भी याद कर सकता है ना? नहीं लगेगा मतलब पास्ट सिंपल। क्या तुमने आज खाना खाया? भूतकाल हो गया। क्या उसने कुछ पूछा? भले ही 1 सेकंड पूछा हो, 1 सेकंड पहले पूछा हो, भूतकाल हो गया। तो हाँ रेनू प्लीज गो अहेड। जी सॉरी सर, एक्चुअली अटेंशन नहीं होने से ऐसा होता है सर। आई वाज लाइक लिटिल डिस्टर्ब बिकॉज टुडे माय मेड इज वर्किंग, सो आई एम लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, सॉरी। क्या नाम है? पूनम, हाँ पूनम। एक बात और बोल दे, हम भूल जाएंगे रेनू। 1 सेकंड, सॉरी यस, टू या इंटरप्ट। वो सारिका चली गई थी, इसलिए फिर वो बात हमने नहीं बोली। एक्चुअली वो सारिका के लिए नहीं, वो आप सबके लिए। गलती क्यों होती है, इसके पीछे का साइंस देखिएगा। जब इसका और इसका तालमेल नहीं होता है, तब गलती होती है। यहाँ सही चल रहा होगा आपका, ये सबसे ज्यादा कोमल और क्या फ्लेक्सिबल, स्लीपरी सर, फट से फिसल जाती हाँ है। ये फिसल जाती है। तो यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है ना? यहाँ आते आते कुछ का कुछ निकल जाता है, तो हमें लगता है नहीं नहीं मैं तो सही बोल रहा था, बोल रही।
और वो जो सुनने वाला है उसने तो यहाँ से सुना, उसको ये ही कैन नॉट रीड योर माइंड। तो इन दोनों का समायोजन ना होना गलती का कारण होता है। या पूनम, क्या दीपिका आपके लिए कुछ बनाती है? हाँ रेणु, वह मेरे लिए कुछ बनाती है। सर, whom I have to ask? आसमी आई एम ऑल्सो रेस्ट। अच्छा, सारिका। नहीं, अभी हाँ, सारिका इज रेस्ट, शी वाज डिस्कनेक्टेड। आस्क रितु इज डन। Does your husband go for work? Sarika, does your husband go for work? यस भाभी, ही गोज फॉर वर्क। सारिका, क्या आपके हस्बैंड काम पर जाते हैं? जी भाभी, वे काम पर जाते हैं। अब पूनम, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी कोई काम पे जा नहीं रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन सारिका को ये पता है कि अभी अफर्मेटिव आंसर देना है। ये तुमने नोटिस नहीं किया, दैट्स व्हाई यू वर गिविंग नेगेटिव आंसर। Ritu, you are done. Okay, I asked you question, you answered. Can I make one sentence? नहीं, अपन राउंड चल रहे हैं, उसको समझना Okay. हम ऐसा राउंड क्यों चला रहे हैं। सारिका, you ask me, then I will ask Aparna. जी सर, डज योर ग्रैंडमदर नहीं, डज योर मदर इन लॉ कीप फास्ट इन दिस एज? Yes, she really keeps fast even in this age. On this age, sorry, on this age. ऑन दिस एज, ओके सर। सर, क्या आपकी सासू माँ इस एज में भी उपवास रखती हैं? दोस्तों, अगर जिसने सीखना होगा सीख लिया होगा, हम अलग से भी बता देंगे और अभ्यास भी करा देंगे। बात जो सारिका बोलने चाहती थी उसमें इवन लगना जरूरी था। सारिका, वुड यू लाइक टू स्पीक? यस सर, श्योर। डज योर मदर इन लॉ कीप फास्ट ऑन even on is in this age? नहीं, does your mother-in-law keep fast even on this age? Yes, she keeps fast even on this age. सर, क्या आपकी सासू माँ इस उम्र में भी उपवास रखती हैं? हाँ, वे इस उम्र में भी उपवास रखती हैं। अपर्णा, did Modi ji deliver nice speech? Yes, sir. Modi ji delivered nice speech. आपने ध्यान दिया होगा हमने सेंटेंस बदला नहीं। आपको याद हो तो आप इसको जारी रखिए। Sorry, he delivered nice speech. क्या मोदी जी ने अच्छी स्पीच दी? हाँ, उन्होंने अच्छी स्पीच दी। अपर्णा, you will have to ask Renu. Renu will ask me. I will ask you. Okay, Renu Bhabhi, does your daughter? हमने काल Okay, बदल Renu दिया Bhabhi, है। did your daughter get advantage of an opportunity? क्या ये वही बात है जो पिछली बार हो रही? नो सर। नहीं, it was not that. अगर याद ना हो तो बदल दें, याद हो तो No, इसी sir, को I जारी remember. रखें।
Did Shubham comprehend all the chapter? सॉरी, हमें Yes, एस सुनाई नहीं दिया. All the chapters. Did Shubham comprehend all the chapters? yes, he comprehend all the chapters. Sorry, Bhabhi. Yes, he comprehended all the chapters. Second form. क्या शुभम ने सभी चैप्टर्स आत्मसात कर लिए हैं? हाँ, उस कर लिए कर लिया. कर लिए क्या शुभम ने सभी चैप्टर आत्मसात कर लिए? हाँ, उसने सारे चैप्टर आत्मसात कर लिए. ओके सर, आई हैव टू आस्क यू और पूनम यू. Ask. ओके ओके सर, what to ask? Did You your can ask whatever you want. okay sir, did your son ever made tea for you? Yes, Sorry, he Bhabhi. made. Sorry. Sir, Come again. Past simple is going. Yeah, हाँ, make आएगा. Did your son ever make tea for you? Yes, he made tea for me several times. ओके. क्या आपके बेटे ने आपके लिए कभी चाय बनाई? हाँ, उसने कई बार चाय बनाई मेरी. ओके. Ritu, did Aparna come to you last year? Yes, sir. She comes to me last. Sorry, Ritu. She came to me last year. I repeat, did Aparna come to you last year? Yes, sir. She came to me last year. क्या पिछले साल अपर्णा तुम्हारे घर, तुम्हारे यहाँ आई थी? हाँ सर, वह पिछले साल मेरे घर आई थी. पूनम. पूनम. Ask to पूनम. Okay. Poonam, did Kunika gone to school yesterday? Sorry, Ritu. sorry. Sorry. Did Kunika go पिछला to? सेंटेंस याद नहीं है रितु? नहीं भूल सर, गए? भूल गई. ठीक है, नया बना लो. Did she gone to school yesterday? Sorry. रितु, डिड लगेगा और थर्ड फॉर्म आएगा, ये बिल्कुल कभी ग्रामर में नहीं हो सकता. Did she go to school yesterday? Did she go to school yesterday? तुम क्या? प्रोनाउन रख रहे हो? आर यू पुटिंग प्रोनाउन? Yes sir. नाउन रखना है ना, प्रोनाउन का यूज. Okay. Did Kunika go to school yesterday? Yes, she went to school yesterday. क्या कुनिका कल स्कूल गई थी? हाँ, वो कल स्कूल गई थी. Unmute yourself. अच्छा, she is still not in the process. She's paused. Oh, sorry, sir. Whom I had to ask? I don't know. Sarika. Huh? You should know. Yeah. Sarika. Aparna, try to keep yourself mute. Sarika, did your husband go to work? पूनम, पहले बढ़िया 3 कदम तो गो क्रिया तुमसे ही पूछी गई. रितु ने तुमसे गो क्रिया ही पूछी. बढ़िया 3 कदम तो.
Sir, come again, sir. You are not clearly audible to me. हम थोड़ा जोर से भी बोल देते हैं। डिड गो क्रिया अभी अभी तुमसे ही पूछी गई थी। ऋतु ने गो क्रिया का प्रयोग किया था Okay, sir. और तुमने गो क्रिया का फिर से प्रयोग कर लिया, तो इसके लिए 3 का दंड दीजिए। Okay. Did your 3 का दंड मतलब क्या हम आपकी मदद करवाएं, इन लोगों से एक एक बुलवाएं और आप उनको रिपीट करें? yes sir. एक भी इंटरेक्टिव इडियम नहीं लिखे क्या आपने? ये लोग व्हाट्सएप में शेयर तो करके रखें। चलिए हम बैक करके आपको लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं व्हाट्सएप में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। I am sharing my screen. I will not be seen. Renu, is my screen visible? Yes, sir. Your screen is visible. This is your group and थोड़ा सा ये हमारा URL है अभी जो भेजा है। यहाँ देखते हैं ये सेंटेंसेस में किसी को वेलकम किया गया है, सोनिका को, और बैक जाते हैं और बैक। ये जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो, बहुत सरसराहट सुनाई दे रही है। ये इन्होंने क्या भेजा? अच्छा ये भेजा है। ओके, यूनिक शब्द आपको मिल गया। थैंक यू सारिका। EUNUCH बड़ी अलग है स्पेलिंग, जड़ा नपुंसक। ओके थैंक यू। ये क्या भेजा है? ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजा गया है। ओके देखते हैं, लेट मी सी हाउ मेनी interactive idioms. I have given one video related one idiom. Okay, thank you. Video. Order request. Today, Poonam, today I have said Renu to give 20D. So she will send 20D. Maybe all together, maybe one by one, whatever. Okay, yes. These are all the sentences. Guys, you can do one thing, all the present guys, if you are listening to me. Just for nothing, you should send some interactive idiom. Just for nothing. Sir, meanwhile, we can speak interactive idiom and she will get it. हाँ, that is better Yeah. suggestion. Please go ahead. Yeah. Poonam, first idiom is tit for tat, जैसे को तैसा. It's raining cats and dogs. But she is not speaking. हाँ. Let her speak after you. Okay. Tit You for speak only one interactive idiom. Then Yeah. Aparna will speak and like this. Okay. Tit for tat, जैसे को तैसा. Tit for tat, जैसे को तैसा. Aparna? Here we go. This is the first one. Interactive. शुरू करें या शुरू करते हैं. Here Oh, ये सब they see here. This is sent by Ritu. I am pressed for time. Can you read this? Yes
sir. I'm pressed for time. This fortune Poonam, never comes Yes, Ritu singly. has sent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 42, sir, 9, I have sent. 10. Oh my. The date is 27th June. And here again. Oh, very nice. Sir, she has My God. sent altogether 42. She has written and shared in the group. Okay. So now what do you say, Poonam? yes, sir. पिक्चर की डायलॉग की भाषा में बोले, क्या बोलती तू? Sir, I, I have not done my homework, so I should punish. Okay, punish me. No, you punish me. अभी हम जो इतनी देर से कर रहे थे वो हमारा पनिशमेंट का ही तरीका है. Yes. हम रियलाइज करवा रहे थे पूनम को कि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, और इससे आपको रियलाइज होगा कि आपके साथ साथ बाकी सबका कीमती समय भी बर्बाद होगा. If you want to continue this batch, you will have to be hardworking. You will have to be up to date. Otherwise, I will do the same thing. Ritu has sent 40. Ritu? 42, sir. 42. तो इससे ये बात साबित होती है, अब हमने अभी अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला, अब आप मत कीजिएगा. हमने बोला था कि जस्ट फॉर नथिंग एक इंफेक्टेडियम कभी भी बैठे बैठे भेज दो, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें दिख गया है, इसको कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, साफ हो गया कि भेजे तो गए थे, लिखे नहीं गए. चलिए, अभी तो 3 का दंड पूनम को देना ही है, दे दिया. इज द 3D डन? ये दंड कहाँ किस संदर्भ में अचानक हुआ था? अच्छा, गो वर्क. शी रिपीटेड गो वर्क. नाउ आफ्टर दिस change the verb and ask any question to Sarika. Okay, sir. Sarika, does your maid? Sorry, Poonam. Okay. I Sorry, think did. you got Did. little bit pressure. No, sir. I got my mistake. Did. I had to use did. Uh, Sarika, did your maid uh, does the household works? The, Did और does का प्रयोग अजीब सा नहीं लग रहा? do. अच्छा, verbs भी नहीं लिखी हैं क्या पूनम? नहीं सर, verbs लिखी हैं. तो एक आध पेज पलट के बहुत अच्छा सा रंग डिजाइन की कोई वर्क निकालो ना.
डांस वर्ब ले लो, इतनी देर में तो गूगल मीट। सिंग ले लो, डांस ले लो, आज जो सेंटेंस बनाया था वो वर्ब याद कर लो। Sarika, did your friend dance very well? Yes, भाभी, she danced very well. सारिका, क्या आपकी फ्रेंड ने बहुत अच्छा डांस किया था? हाँ भाभी, उसने बहुत अच्छा डांस किया. Sir, should I ask to you, no? You should ask me. Did your mother-in-law keep fast even on this age? Same sentence, na? Good. Yes, Sarika, she kept fast even on this age. सर, क्या आपकी सासू माँ ने इस एज में भी व्रत रखा? हाँ सारिका, उन्होंने इस उम्र में भी व्रत रखा था. अपर्णा, will Narendra Modi deliver a speech on this Republic Day? No. Republic Day तो बाद में आएगा, अभी जुलाई अगस्त इंडिपेंडेंस डे. थोड़ा बड़ा करते हैं सेंटेंस अपर्णा, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से हम बड़ा कर देते हैं, एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं. Will the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, deliver a speech on this Independence Day from the Red Fort? Unmute yourself. Definitely, he will deliver a speech on this Independence Day from Red Fort. Okay. क्या कोई बता सकता है definitely? What is definitely? What is definitely? Sir, definitely. Sir, can I try? Definitely. Okay. Adverb. Yes. He will deliver. Sarika, what is definitely? Definitely is a adverb. And लगेगा सारिका. And article and. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Definitely is an adverb. एडवर्ब की पहचान अब सारिका तुम नहीं बताना, कौन बताएगा? इतनी सी पहचान. ऋतु. Yes, sir. अच्छा, सॉरी. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब. ऋतु, अभी हमने एक चीज नोटिस की, तो हमें म्यूट और अनम्यूट करने के लिए बहुत आगे तक कैसे कुछ जाना पड़ता. मोबाइल थोड़ा मतलब डेप्थ में रखा है अंदर, ये जगह मैंने चेंज करी है. अच्छा, तो क्या पहचान है, क्या बताया ऋतु तुमने? सर, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया एडवर्ब कहलाते हैं. अच्छा, अपर्णा तुम क्या बता रही, बताइए सर. वर्ब के पहले लगने वाले शब्द को एडवर्ब. ओके, गुड. रेनू, would you like to say something? सर, एडवर्ब सर जो विशेषता बताता है व्यक्ति की, आई थिंक. Very. Sarika, would you like to say something else? No. सर, इंग्लिश में उसमें एडजेक्टिव में एल से या डबल एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है. ये बताया था ना कभी. चलो अच्छा, आज रिपीटेशन हो रहा. एल वाई अगर शब्द के अंत में लगा है दोस्तों, एडवर्ब ही होगा. एडवर्ब दो तरह के होते
एक तो सीधी पहचान है, एल वाई लगा हुआ। अब इसकी लगाने का तरीका ये है कि चूंकि इसका पूरा नाम है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाए, और जब किसी चीज की विशेषता बतलाई जाती है तो उसके सामने, उसके आगे, सामने आकर वो लग जाता है। तो ऐसा याद करने की झंझट अगर आपको नहीं लेना है तो एक बहुत खूबसूरत तरीका है, एड वर्ब। एड वर्ब अपनी बात खुद ही कह रहा है, स्वयंभू। एड वर्ब, तो जहां आपको वर्ब दिखे उसके सामने ऐड कर दो तो वो एडवर्ब हो जाए। So Aparna, will the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, deliver his speech on the Independence Day from the Red Fort? Yes, sir. He will definitely deliver speech. Come again. Come again. Come again. He will deliver. He will definitely deliver. Thank you. He will definitely deliver his speech on 15th on the Independence Day from Red Fort. क्या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे? हाँ सर, निश्चित रूप से वह 15 अगस्त को भारत के लाल किले की प्राचीन इमारत से भाषण देंगे। निश्चित तौर, निश्चित, precisely, yes, I should have taken precisely instead of definitely. ये हिंदी शब्द सुना हुआ है क्या? नहीं। प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से। जी जी सुना है। हाँ, गुम्बज। गुम्बज मीन्स, देखो बेटा, गुम्बज को तो गुम्बज ही बोलते हैं, है ना? सबसे ऊंचा स्थान ना सर, प्राचीर। देखो, गुम्बज शब्द बना है जो ढहा दिया गया था, अपन ने टीवी पे खूब देखा था, एक विवादास्पद इमारत अयोध्या में, गुम्बज पे चढ़ गए। तो गुम्बज तो वो होता है, गोल गोल सा होता है, लेकिन लाल किले की प्राचीर, वो है ना? लंबी दीवार, बाउंड्री वॉल, हाँ, आप लोग इस पर थोड़ा सा और अध्ययन करें। पैराफिट वॉल तो घर के चारों तरफ होती है और पैराफिट वॉल छत पे मैंने एकदम से नतीजे पर ना पहुंचे, हिंदी है और शब्द बना है पर्टिकुलरली। अक्सर हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी रहते हैं लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, तो अच्छा शब्द है, और इतनी जल्दी नतीजों पे ना पहुंचा करें दोस्तों। अब असामान्य कम प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो जरा अपन थोड़ा सा खोजबीन करें ना। गूगल, लेट्स गूगल, सेंड इन द ग्रुप। चलिए, Aparna has to ask. Aparna has to ask. Okay, sir. Renu Bhabhi, will Shubham comprehend all the chapters from on virtual classes? Yes, he will comprehend all the chapters from virtual classes. क्या शुभम
वर्चुअल क्लासेस से सारे चैप्टर्स आत्मसात करेगा। हाँ, वह वर्चुअल क्लासेस से सारे चैप्टर्स आत्मसात करेगा। ओके सर, आई हैव टू आस्क रितु। You have to ask me, I will ask. ओके सर, विल यू एक्सप्लेन। अभी अपन एक वचन कर्ता लेकर आगे चल रहे हैं, और यू आई वी यू बी, बहुवचन। यू जो है बहुवचन ही होता है। फिर से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, नए लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी। याद कीजिए, हमने आपको शेक्सपियर तक लेकर गए थे कि आप शेक्सपियर की बुक में अगर देखेंगे तो यू का एक वचन दाउ, THOU मिल जाएगा। दाउ, इट इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। दाउ, दाउ आर्ट ए बैड मैन। याद कीजिए, ये बताया था, दाउ आर्ट अ बैड मैन। और मजाक भी किया था, तू बुरा आदमी है रे, दाउ आर्ट ए बैड मैन। तो प्राचीन अंग्रेजी में दाउ शब्द का प्रयोग चलता था, और उसके साथ सहायक क्रिया आर्ट लगती थी, जो कि लुप्त हो गई। THOU, दाउ, सहायक क्रिया आर्ट। दाउ आर्ट ए बैड मैन, तू बुरा आदमी है रे। फिर दाउ लुप्त हो गया दोस्तों, तो मजबूरी में अंग्रेजों को यू का प्रयोग एक वचन के लिए भी करना पड़ा, बहुवचन के लिए। लेकिन यू के साथ सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया हमेशा बहुवचन की ही लगती आ रही है, क्योंकि हम यू इज नहीं बोल सकते कभी, हमें मजबूरी में यू आर ही बोलना। तो चलिए, इस बहाने एक रिवीजन हो गया। तो यू बहुवचन की तरह काम करता है, उसके साथ कभी हम इज नहीं लगा सकते। बोल के देखिए, अजीब लगेगा, यू इज ए बैड मैन, तो यू बहुवचन। हमें एक वचन लेना है, रेनू, आश्मी। ओके सर, पोस्टमैन डिलीवर। प्लीज कम अगेन। ओके, will postman deliver letters frequently at your place? Yes, definitely. Sorry, He will deliver. Okay, sorry. should I interrupt? Yes, please. I have used name. Sir has used deliver. Deliver. So should she लेकिन अपर्णा deliver सुनो, letter? सभी लोग। ओके, सभी लोग सुन ले। हम फिर से बताते हैं वो नियम। अगर एक क्रिया के एक से अधिक अर्थ मौजूद, तो वो एक ही राउंड में एक से अधिक बार प्रयोग की जा सकती है। हम रटा रटाए उदाहरण फिर से बोल देते हैं। जैसे हैव के 3 अर्थ, खाना, पीना, लेना। तो अगर पहले बंदे ने खाने के लिए यूज कर ली, तो दूसरा बंदा पीने के लिए कर सकता है, और तीसरा बंदा लेने के लिए कर सकता है। बी क्रिया के भी 3 हिंदी होते हैं, होना, बनना, रहना। तो यहाँ डिलीवर का दूसरा अर्थ हो रहा है पढ़ना, इसलिए ये स्वीकार है। रेनू, प्लीज, would you mind asking again? No, sir. Thank you, sir. Will postman deliver your post frequently? Yes, he will deliver my post frequently. क्या आपका क्या डाकिया आपकी डाक
frequently लाएगा? हाँ जी, वो मेरी डांट नियमित लाएगा, समय समय पर लाएगा। रितु, will Aparna come to you this year? Yes, sir. She will come this year. Come again, please. Yes, sir. She will come this year. Sorry. कुछ Come तो again. तुमने या तो सुना नहीं या छोड़ दिया Sir, please come again. या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। हाँ, ये कम अगेन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव दिस। और ये इतना खूबसूरत है कि इससे ना बोलने वाले को कोई नुकसान है, ना सुनने वाले को, सबको फायदा है। बोलने वाला दोबारा बोलेगा, सुनने वाले दोबारा सुन लेंगे। तो जितनी ज्यादा हम बोलेंगे उतनी ज्यादा इंग्लिश मुंह से निकलेगी, है ना? है कि नहीं? So, will Aparna come to you this year? Yes, sir. She will come to me this year. क्या अपर्णा इस साल आपके यहाँ आएगी? हाँ सर, वह मेरे यहाँ इस साल आएगी. थैंक यू. Whom should I ask, sir? The same person last time. To whom did you ask? Same round is going on. हम 2 बार प्रश्न कर रहे हैं, बाकी सब वैसे ही. Sir, Poonam You has should know to whom. Poonam has left. Yes, sir. Oh, Poonam, Yeah. are you there? Hello. No, I'm here, sir. Okay, okay. Or she's here. You are She's not here. visible. That's why I'm saying. Poonam, does Shubhang come to you for meeting? कौन सा टेंस पूछ रही हो बेटा? Sorry. Will Shubhang come to you for meeting? Yes, he will come to me for meeting. क्या शुभांग तुम्हारे पास आएगा मीटिंग के लिए? हाँ ऋतु, वो आएगा मीटिंग के लिए. हाँ वो ऋतु वो आएगा मीटिंग के लिए. ओके, सारिका. अरे पूनम, एक सेकेंड. कल रहा हूं मैं जा दिल्ली. कैसा लगा ये सेंटेंस? कल हूं मैं रहा जा दिल्ली. क्यों ऋतु, कैसा लगा? बहुत खराब सर. तो ठीक करके बोल दो अपना हिंदी. ऋतु, कम अगेन इन हिंदी. Will Shubhang come to you for meeting? Yes, he will come to me for meeting. क्या शुभांग तुम आपके पास आएगा मीटिंग के लिए? हाँ, शुभांग मीटिंग के लिए आएगा. सारिका. सॉरी पूनम. Sarika, I have to ask now, Sarika. सॉरी फॉर योर हिंदी. वैसे तो तुम्हारा हिंदी भी गलत है. गलत है सर. तुम्हारा हिंदी ये होना चाहिए, क्या कल शुभांग आपके पास मिलने के लिए आएगा? मीटिंग के लिए आएगा. हाँ. तो उस Wrong हिसाब से question, उसके sir. Wrong लिए सही. answer. चलो, it will do, sir. Okay. Go ahead, Poonam. अब बहुत ज्यादा अपन बाल की खाल नहीं निकालते. Sarika is left. Sarika is not here. No, Bhabhi, I am here. I am here. ऐसे बोलो, हेलो सारिका, नॉक नॉक. वो आ जाएगी. I am here, Bhabhi. Okay, Sarika,
Will your friends dance very well in the competition? Yes, Bhabhi, they will dance very well in the competition. सारिका, क्या आपकी फ्रेंड कंपटीशन में अच्छा डांस करेगी? Sorry. करेगा बोल रहा अपना हाँ ठीक है। हाँ भाभी, वे कंपटीशन में अच्छा डांस करेंगी। सॉरी सारिका, सम्मान दे योर रही है फ्रेंड्स सारी। बोला ना उन्हें। हाँ, सर, वो बोलने उन्होंने में योर फ्रेंड्स देखो, बोला। इतना चर्चा करने की जगह एक बार मस्त कम अगेन बोल। ओके भाभी, प्लीज अगेन। Will your friend dance very well in the competition? Yes, Bhabhi, she will dance very well in the competition. क्या आपकी फ्रेंड कंपटीशन में अच्छा डांस करेगी? हाँ भाभी, वह कंपटीशन में अच्छा डांस करेगी। सर, will your mother-in-law keep fast every सावन सोमवार even on this age? दिन के सामने ऑन प्रपोजिशन लगाना अच्छा लगता है। रिपीट। जी जी जी, ओके। Will your mother-in-law keep fast every सावन सोमवार नहीं even लगा। on this? नहीं लगाया? नहीं, श्रावण सोमवार एक दिन है ना, श्रावण सोमवार। ओ सावन सोमवार ना, कम अगेन। ओके। Will your mother-in-law keep fast on every सावन सोमवार even on this age? Yes, she will keep fast on every Shravan Samvar, even on this age. सर, क्या आपकी सासू माँ इस एज में भी प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखेंगी? हाँ सारिका, वे इस उम्र में भी हर श्रावण सोमवार पर उपवास करेंगी। अपर्णा, does Narendra Modi want to deliver his speech? yes sir, he wants to deliver a speech. क्या नरेंद्र मोदी स्पीच देना चाहते हैं? हाँ सर, वे रिस्पेक्टली वे स्पीच देना चाहते हैं। रेणु भाभी, does Shubham wants to comprehend all the chapter? Does Shubham want to comprehend all the chapter? Renu Bhabhi, are you there? All the, Yeah, I'm Chapters. there. all the, Chapters. Yes, he wants to comprehend all the chapters. क्या Yes. शुभम सभी चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंड करना चाहता है? हाँ, वह सारे अध्यायों को आत्मसात पाठों को, करना, अध्याय पाठों हाँ, पाठों को आत्मसात करना चाहता है। ओके, डस, so I have to ask sir. Oh my God. एक सेकंड रुकिए, हिंदी की Yes. इस बारीक चीज को सभी सुनिएगा। अध्याय में हम ओ की मात्रा कभी लगा नहीं सकते, आप लगा के देखिए, अजीब लगे। सर अध्यायों तो
आमतौर पर हम जो देखते हैं ना, पांचवा अध्याय, हाँ, पांचों में लगा सकते हैं अपन, पांचवा पांचवा अध्याय अध्याय। पूर्ण हुए, है ना। हम्म, सभी अध्याय में एक चीज मुख्य है, ऐसा अपन बोलते हैं। वैसे तुमने लगाया तो खराब लगा नहीं। लगा नहीं सर, हाँ, अध्यायों से दिया हाँ, गया है। हाँ, सभी अध्यायों, ठीक है, सही है, लग जाएगा। ओके, प्लीज आस्क मी। Okay. Sir, does Amitabh Bachchan wants to Sorry. Same. does Like draw likes. We are just like draw like. want to? Okay. Does Amitabh लाइक Bachchan ड्रॉज है बेटा, ड्रॉज। Like draws like. like draws like? Come to Does you for time. Amitabh Bachchan want to Because you are unmute. act with you? Yes, he really wants to act with me, but you know, I'm not having time because of classes. सर, क्या अमिताभ बच्चन आपके साथ एक्टिंग करना चाहते हैं? हाँ, वास्तव में चाहते तो हैं, लेकिन क्लासेस के कारण मेरे पास समय नहीं। दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। हाउ कैन आई डिसअपॉइंट द पीपल? ओके रितु, डज अपर्णा वांट टू come to you? Yes, sir. She want to come to me. She wants to come to me. क्या अपर्णा आपके यहाँ आना चाहती है? Yes, sir. वह मेरे यहाँ आना चाहती है। थैंक यू। पूनम, does Kunika wants to does Kunika want to go down for play? Yes. फॉर के बाद प्ले लगाना उचित है क्या दोस्तों? पूनम, एक अच्छा नियम तुम्हें मिलने जा रहा है, म्यूट करके सुनोगी तो अच्छे से सुनाई देगा सभी लोग। हम ही बता देते हैं, फॉर कब, फॉर एक प्रीपोजिशन है पूनम, और कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद हमेशा नाउन का आना जरूरी होता है। हमने इन लोगों को ऐसा बॉक्स बनवाया था, हम फिर से बना देते हैं। और अगर आप वर्ब रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप वर्ब नहीं रख सकते, आप वर्ब रख सकते हैं, लेकिन वर्ब को नाउन बनाने का जो बहुत आसान तरीका है वो हम अपर्णा से पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी सारिका का जो रिसेप्शन है वो क्लियर नहीं है। अपर्णा बताओ, वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं? वर्ब में ing लगा देते हैं, ing लगा के नाउन बना सकते हैं, या ठीक है, अब हमारे मुंह से भी एक बार सुन लीजिए, वर्ब के अंत में आर या ER लगा दीजिए तो वो नाउन बन जाता है। ये ऐसा बॉक्स अगर हमने आपके पहले कभी बना के नहीं दिखाया तो ये आज चर्चा होगी। हिंदी में भी लिख देते संज्ञा, और यहाँ ऑलवेज लिख देते। प्रपोजिशन का हिंदी हमें नहीं पता दोस्तों। तो फॉर एक प्रपोजिशन है, उसके बाद सीधे प्ले नहीं आ सकता। Okay, sir. Does Kunika wants to go down play? सॉरी, कम अगेन। एक और अच्छा तरीका है दोस्तों, अगर आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखना है तो उसको जोड़ने के लिए एक फेविकोल शब्द हमने बहुत फेमस कर रखा है। Does Kunika wants to? किसी को फेविकोल याद आ रहा है? टू सर। टू। हाँ,
याद करो जब want to सिखाते ना, want to, wanna, यस सर। ये सबसे खूबसूरत तरीका है। लेकिन हम हिंदी मीडियम वालों को फॉर लगाने की आदत हो जाती है, तो हम वो धीरे 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 हटाते। Does Kunika Do लगा। want to play with you? Unmute Poonam. Mute yourself. Yes, she wants to play with me. क्या कुनिका आपके साथ खेलना चाहती है? हाँ रितु, वह मेरे साथ खेलना चाहती है। पूनम, क्या होता है जैसे डज लगता है ना, तो मुख्य क्रिया का एस या एस हट जाता है। ये बताया हमने। यस सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। सारिका, सारिका, हाँ भाभी। हाँ सारिका, आप पूछ लीजिए। does your friend want to dance in the competition? Yes भाभी, she wants to dance in the competition. सारिका, क्या आपकी दोस्त कंपटीशन में डांस करना चाहती है? हाँ भाभी, वह कंपटीशन में डांस करना चाहती है। सर, does your mother-in-law want to keep fast on Ganesh Chaturthi as well, even on this age? पूनम, तुमने ध्यान दिया होगा कि सारिका एस को लाउडली प्रोनाउंस करती है, डेलिबरेटली, नोइंगली, पर्पसली। इन तीनों का अर्थ होता है जानबूझकर। तो हम भी जानबूझकर एस को लाउडली, स्पेशली पॉज देके प्रोनाउंस करते हैं। तो बाकी लोग भी थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लें, ताकि जो नेक्स्ट है उसको सुविधा हो। कुछ दिनों की बात है, फिर उसके बाद वो अपने आप आ जाएगा जवाब। एनीवेज, यस सारिका, माय मदर इन लॉ, या चलिए प्रोनाउन यूज करते हैं। यस सारिका, शी wants to keep fast on this Ganesh Chaturthi as well on even this age. सर, क्या आपकी सासू माँ इस एज में गणेश चतुर्थी का भी व्रत रखेंगी? सॉरी सर, भूख क्या लग रही। आपकी सासू माँ, हाँ भूख लगाई है अब। अरे बाप रे, इट इज 2:15। चलो रोक Yes, दें sir. क्या? वैसे तो ये सर, राउंड मैं यहीं इसको पे सुधार समाप्त। दूं? देखो, तुमने दो सर, इसको गलतियां बस सुधार दूं? सर दिस इज द इवन तुमने लास्ट लगाया, क्वेश्चन। लेकिन हाँ, तुमने इवन का हिंदी नहीं किया बेटा, हिंदी पूरा बोलो। जी सर, क्या आपकी सासू माँ इस एज में भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहती हैं? एज वेल लगाया था तुमने। हाँ, क्या आपकी सासू माँ इस उम्र की गणेश चतुर्थी का भी व्रत रखना चाहती हैं? हाँ, हमने जो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तो उसमें जानबूझ के किया है कि रेनू के मुंह से अभी बड़े बड़े सेंटेंस निकलने लगे, तो रेनू और ऋतु के बीच में हमने खुद को डाल दिया। अभी मुख्य बात यह है कि आप डबल वर्ब, देखिए हम धीरे धीरे चल के आए, आप समझ तो गए होंगे अब यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, कि जो हम आपको करवाना चाहते थे वो समझ में तो आ गया होगा। हमने एक वर्ब ली, एक सब्जेक्ट लिया, उसी पे चलते चले जा रहे हैं, है ना, और फिर डबल वर्ब पे भी आ गए। तो क्योंकि हल्का सा हमने सुना था जब तुम लोग सेंटेंस बना रही थी, कोई बुढ़ापे की चर्चा कर रहा था, कोई सठिया गया है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ हल्की फुल्की सी आवाजें आ रही, तो हमने बोला चलो जवानी लेकर आते। एज इज जस्ट ए फिगर।
उम्र एक आंकड़ा मात्र है ना। तो तुम्हारा हिंदी सही हो गया। हाँ, वे या अर्थात मेरी सासू माँ इस उम्र में भी गणेश चतुर्थी का भी व्रत रखना चाहती हैं भाई। चलो अभी समाप्त करते, वैसे हो तो गया है पूरा। हम इसी को कल आगे लेकर चलेंगे। जाहिर सी बात है, अब हम पास्ट में जाएंगे। कल अपर्णा से शुरू करेंगे सीधे, और हमारा सेंटेंस वही रहेगा, नरेंद्र मोदी ही आएंगे भाषण देने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir.